Yes, students, we are talking about animal kingdom. In last lecture, we have studied about different characters like germ layer, symmetry, digestive system, respiratory system, etc. Two more characters we have to discuss. One is notochord and second is a reproduction. As we know that a notochord is solid rod-like structure present on the, we can say, dorsal side of the body. So this is a mesoderm derived, that is mesoderm जो 3 लेयर होती है उसकी मेसोडर्म से डिराइव होती है एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड. कहाँ पर बनती है? डोर्सल साइड पे व्हेन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ये बनती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, तो दैट मीन्स वी कैन क्लासीफाई ऑल द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप. वन इज नोन एज नॉन कॉर्डेट्स एंड अदर इज नोन एज ए chordates. That means without notochord and they are with the notochord. Okay, so this is about the notochord. Next is reproduction. If you remember, we have seen in class in plant kingdom, that means there are different types of, we can say, plants bodies are there. Some are, we can say, unisexual, some are bisexual. We have used the term there monoecious and dioecious. Here reproduction, like we can say, if we talk about sexes, then it can be, a body can be unisexual or it can be bisexual. Here we use a special term for bisexual, that is known as hermaphrodite. क्या बोलते हैं इसको? hermaphrodite. Okay, so that means sexes are, that could be unisexual or bisexual, known as hermaphrodite. Second, if we talk about fertilization, that means where does fertilization takes place? It could be internal or it could be external. Internal mean inside फीमेल बॉडी जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, और वी कैन से एक्सटर्नल, वी कैन से आउटसाइड फीमेल बॉडी, एज वी कैन सी इन केस ऑफ फ्रॉग. तो सेक्सेस कुड बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, दैट इज नॉन बाइसेक्सुअल नोन एज hermaphrodite. Fertilization could be internal and external. Now one more term, that is development. Development could be of two types. One is known as direct, other is known as a indirect. If you remember the life cycle of frog, जो frog का zygote होता है, zygote से जो डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर, that is known as larva, और फिर larva से क्या बनता है? adult बनता है. That means this larva is a intermediate stage. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि देयर इज ए लार्वल स्टेज, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है नो लार्वल स्टेज. ओके, तो दैट मीन्स नोटोकॉर्ड मेसोडर्म में डिराइव है, सॉलिड रॉड लाइक है, ऑन वी कैन से डोर्सल साइड ऑफ बॉडी है. देन सेक्सेस और रिप्रोडक्शन, इन सेक्सेस कुड बी, we can say, separate or on the same body. Then fertilization could be internal, external. Development direct or indirect. Indirect development mean larval stage और direct development mean no larval stage. Okay, अब हमने जितनी भी terms यहाँ तक पढ़ी है, चाहे वो सिमेट्री में हो, लाइक एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल, और हमने पढ़ा हो कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या हमने कोई और कैरेक्टर पढ़ा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि like this development is direct or indirect, और we have studied about pseudocoelomate, coelomate, तो वो सारे वर्ड्स अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप. ओके, तो ब्रीफ में सारे जितने भी एक बार ग्रुप हैं एनिमल्स के, उनको देखो. According to our syllabus, there are total 11 phylum, that means animal kingdom, divided into 11
phylums. Okay, the very first is known as Porifera. Second is known as Coelenterata, also known as Cnidaria. Third is known as Ctenophora. Fourth is known as Platyhelminthes. Next is known as Aschelminthes. Next is known as Annelida. After known as Arthropoda. After Arthropoda, Mollusca. After Mollusca, Echinodermata, then Hemichordata, and then Chordata. नाम थोड़े से मुश्किल है प्रोनाउंस करने में भी, बोलने में भी, लिखने में भी, बट वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली. मैं इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये सारे नाम तो मैं याद करवा दूंगा एक शॉर्ट ट्रिक के साथ. तो दैट मीन्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. हियर द वर्ड इज पोरी. एक बार को देख लो. पोरीफेरा, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. 5-6 बार ऐसे बार बार करोगे तो थोड़े याद रह जाएंगे. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस नेम. सो पोरी मीन होता है porous, or we can say pores like, okay. And fera mean होता है bearing. फेरा मीन bearing, that means pores bearing body. एक ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे क्या हो, pores हो. And this also known as sponge. Second is Coelenterata, and other word is Cnidaria. एक वर्ड आया, इसमें स्पेशल तरह की सेल्स होती है, नाइडोब्लास्ट सेल्स. ओके. एंड सीलेन मीन होता है कैविटी. तो इसमें कैविटी होती है, कैविटी बेरिंग एनिमल है. देन हियर टीनोफोरा. हियर सी इज साइलेंट, हियर सी इज आल्सो साइलेंट. टीनोफोरा. टीनो मीन होता है कॉम्ब. टीनो मीन क्या होता है, कॉम्ब. एंड फोरा मीन बियरिंग. जैसे यहाँ पर वर्ड फेरा था, फोरा था, फेरी था, इसका मतलब था बियरिंग. So Ctenophora, that means comb bearing animal. Porifera, pores bearing animal. Coelenterata, that means nidoblast या coelen cavity bearing animal. Ctenophora, that means comb bearing और comb plates होती है इनमें. Then Platyhelminthes. देखो platy मीन होता है flat, जैसे बिल्कुल ऐसे. That means body is also flat. तो इसमें ये हो गए helminthes मीन मतलब होता है वर्म. तो ये हो गए फ्लैट वर्म. तो ये जो एस्केलमेंथिस है, ये एस्केलमेंथ यहाँ पर होता है राउंड. तो ये कौन से वर्म हो गए, राउंड वर्म. देन अनिलिडा, ये होते हैं, दे आर नोन एज ए सेगमेंटेड वर्म. ओके. देन नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा. आर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड, और पोडा मीन होता है फुट. और वी कैन से अपेंडेजेस, दैट मीन्स द अपेंडेजेस विद डिफरेंट जॉइंट्स जिसमें हमारे इंसेक्ट आते हैं. देन मोलस्का नोन एज ए सॉफ्ट एनिमल, और इनको बोलते हैं शेल्ड एनिमल्स. ओके. देन एकाइनोडर्मेटा. एकाइनो मीन होता है स्पाइन्स, डर्मा मीन होता है स्किन. तो दैट मीन spines present on skin.
ओके, देन हियर वर्ड हेमिकोडेटा, हेमी मीन होता है हाफ और कोडेटा मीन विद नोटोकॉर्ड, दैट मीन्स इन हेमिकोडेटा सम ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑफ कोडेटा एंड सम ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑफ नॉन कोडेटा, तो इसको बोलते हैं हेमिकोडेटा। और कोडेटा मीन्स एनिमल विद नोटोकॉर्ड। ओके, अब देखो पोरिफेरा पोर्स बियरिंग एनिमल, सिलेंटेरेटा सिलन कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, नाइडेरिया मीन्स नाइडोब्लास्ट सेल से आया, देन टिनोफोरा बर्ड आया कॉम बियरिंग से, प्लेटी मीन फ्लैट वर्म, एस्क मीन राउंड वर्म, अनिलिडा मीन्स सेगमेंटेड वर्म, इसमें अर्थ फॉर्म है हमारा, आर्थ्रोपोडा मीन ज्वाइंटेड फुट है फुट, देन मोलस्का सॉफ्ट एनिमल और सेल्ड एनिमल, देन अकाइनोडर्मेटा, काइनो मीन्स स्पाइनडर्मा मीन्स स्किन अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा मीन्स हाफ कोडेड कैरेक्टर है, कुछ कोडेड के कुछ नॉन कोडेड के, देन कोडेटा जिसमें नोटोकॉर्ड से है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से नेम ऑफ ए फाइलम। सो पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केल्मिंथीस, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ओके, इनको सबको देखो, जैसे लाइक पोरिफेरा है, पोरस बॉडीज, पोरस बॉडी है, तो देखो ऐसे लाइक दिस यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट पोर्स है, तो इसको मैंने नाम दे दिया पोरिफेरा। ओके, सेकेंड इज सिलेंटेरेटा, ये क्या होती है, कैविटी एक साइड से बंद होती है, दैट मीन्स हियर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, तो बॉडी एक साइड से बंद होती है, एक साइड से ओपन होती है, तो लाइक दिस, जैसे ग्लास है कोई हमारा, तो लाइक दिस वी कैन से दिस इज द कैविटी, तो ये हो गया हमारे पास सिलेंटेरेटा। ओके, देन टिनोफोरा दैट मीन्स कॉम्ब बियरिंग, ये बॉडी ऐसे होती है और जैसे आप ये देख रहे हो ये जो उंगलियां हैं ऐसे कॉम्ब होते हैं, इस पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप्स होती है। ओके, सो ये इसको समझो पोरिफेरा, देन सिलेंटेरेटा, देन आफ्टर दैट दिस टिनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिंथीस मीन फ्लैटवर्म, तो ये हो गया प्लेटीहेल्मिंथीस फ्लैटवर्म है, देन राउंड एस्केल्मिंथीस मीन राउंडवर्म है, तो ये हो गया हमारे पास सेगमेंटेड वर्म, दैट मीन्स देयर आर सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर। ओके, तो वापिस लो, ये क्या हो गया पोरिफेरा, आफ्टर पोरिफेरा दैट मीन्स वी हैव सिलेंटेरेटा, देन टिनोफोरा, आफ्टर टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथीस, देन एस्केल्मिंथीस, देन अनिलिडा दैट मीन्स सेगमेंटेड वर्म, नाउ इज आर्थ्रोपोडा दैट मीन्स जॉइंटेड है तो दैट मीन्स ऐसे जॉइंट, तो आर्थ्रोपोडा, then mollusca body is soft, that means we can say soft body, then after that echinodermata, then body on spines, तो इसको ऐसे कर लो जैसे ये spines है body पर, then hemichordata, that means like suppose this is the chordata, तो here we can stop our hand or we can say यहाँ से जब पकड़ेंगे तो ऐसे like this is the suppose this is the notochord, तो ये क्या हो गया hemichordata और ये हो गया chordata। ओके, ठीक है, अब देखो वापिस एक बार फिर बता रहा हूँ, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केल्मिंथीस, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वेरी सॉफ्ट बॉडी, आफ्टर दैट वी कैन से एकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ओके, इनको ऐसे ध्यान रखना, हम 2-3 बार फिर रिवाइज करेंगे इसी चैप्टर में आगे। ओके, नाउ सी द जनरल कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, अब एक टेबल बनाएंगे उसमें इसके जनरल कैरेक्टर सभी फाइलम्स के एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केल्मिंथीस, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ओके।